Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. First of all, congratulations to all of you for making this family a 15K. Thank you very much for all your support. Secondly, you would have noticed that last week, whatever Aditya predicted, I won't say predicted, whatever Aditya mentioned how the market will play out the next day, the market more or less played out exactly the same way. If you have benefited from that kind of analysis, please do hit the like button. And if you haven't subscribed to our channel yet, so please do subscribe. We definitely plan to bring more such informative and educational videos coming forward. But without wasting any time, let's get started with the multi time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. तो हम पहले शुरू करेंगे निफ्टी के साथ और फिर हम ग्रेजुअली उसके बाद हम बैंक निफ्टी की ओर चलेंगे. First of all, this is the Nifty monthly charts. You can see here, this is monthly chart. So what we can see, every month on month, there is not any close below the previous month, right? This month, which was a June month, we have seen a huge volatility. You can notice this long wick. Why? Because there was this election event wherein, market gave a knee-jerk reaction and then immediately recovered. The very next day onwards, it recovered. And within the same week, it made or closed above that particular high. Remember, this was the pole and flag pattern. Acha, second pole and flag pattern has been already done. I'll delete this. So you can clearly see that this was the pole and flag pattern on the monthly time frame. So it has given a fantastic up move. The final target works out to somewhere around 24,860. However, the first two targets are done now. If you are holding your longs, you have to keep trailing your longs by now because you are in decent profit. And that is the exact reason why we have been maintaining that people who are having their portfolios, you can continue to hold them without taking any hedge, because so far the market is still buy on dips on a higher time frame, which is the monthly time frame. So on the monthly time frame, I can clearly see that there was a sharp reaction from the bulls around 21,200 to 21,300 zones, and from there we have recovered one way. It was a V-shaped recovery. Now let's go to the weekly time frame. So weekly time frame में, coming to the weekly time frame, ये भी हो चुका है हमारा फर्स्ट टारगेट. तो सिर्फ सेकंड टारगेट बाकी वीकली का ब्रेकआउट वाला. देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि हम कौन से टारगेट्स, कौन से पैटर्न और कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं. तो कमिंग टू मंथली टाइम फ्रेम, हमने ये पर्टिकुलर पोल एंड फ्लैग की बात की थी, उसके दो टारगेट्स हो चुके. ये थर्ड टारगेट पेंडिंग है, ये बड़े टाइम फ्रेम का है. फिर हमने वीकली में ये एक रेक्टेंगल देखा था, अगर आप लोगों को याद है तो ये रेक्टेंगल का जो ब्रेकआउट का टारगेट है वो ये है. हालांकि मैं अभी डिलीट कर रही हूँ बिकॉज वैसे देखा तो टेक्निकली इसका एसएल वैसे तो हिट हुआ है, बट बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे रहते हो तो हम हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की बात करते हैं, तो यूजुअली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसका एसएल होता है, जो कि हिट नहीं हुआ था. बट मान लीजिएगा फॉर सम रीजन हो चुका है, तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस ऑफ बिकॉज वी आर मोर और लेस, हम लोग ने वो टच ही किया था, 23,667 तक का हाई बना ही दिया था. तो ये 686, नॉट मच ऑफ अ बिग डील. अब चलते हैं हम डेली में. डेली में आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड. यहाँ पर देखिएगा, ये हमने इलेक्शन वॉलेटिलिटी के बारे में बात किया था कि नीचे आया था और वी शेप रिकवरी बिल्कुल इन. कैन यू सी दिस, जस्ट विद इन 3 days इट रिकवर्ड एवरीथिंग और उसने नए हाइस लगाना शुरू किया. एवरी सिंगल डे हम लोग एक न्यू हाई बना रहे. अब अगर आप देखोगे ये न्यू हाई की क्वालिटी कैसी है, रोज रेड कैंडल है. दिस वन इज अ डोजी, बट अदरवाइज इफ यू सी इट्स अ रेड कैंडल एवरी सिंगल डे. और यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले 4 दिनों से मार्केट एक रेंज में ही है, मतलब 22,400 ऑन द डाउन साइड एंड 22,660 या 22,650 पकड़ लीजिएगा ऑन द अपसाइड. रफली 200-250 पॉइंट के रेंज में मार्केट फंसी हुई है पिछले 4 दिन से. तो अभी ये जो रेक्टेंगल का जिस भी तरफ ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, तो उस तरफ हम 200 to 250 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं. तो अब हमको गेज करना है कि कौन से साइड में जाने के चांसेस है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले तो हम वीकली में चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या हुआ है. वीकली में यहाँ पर देखिएगा तो एक रेड कैंडल है, वो भी डोजी वाली. तो डोजी मीन्स इंडिसिशन, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो वीक है ये इंडिकेट करता है सेलर्स प्रेजेंस, दिस इंडिकेट्स द बायर्स प्रेजेंस एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड इट क्लोज इन बिटवीन. नाउ अगर ये वीक के लो को तोड़ता है जो कि 23,400 के पास में है, तो हम थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस दिख रहा है. अब वो कहाँ तक जाएंगे वो सब हम डिटेल में बात करेंगे ऑन 15 मिनट, ठीक है. तो ये लेवल आपको याद रखने का है. ये वीकली का जो डोजी है, इसका जो भी तरफ ब्रेक होता है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है जो कि 23,650 का है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे. तो अब ये तो हो गया वीकली. अब डेली में देखते हैं. डेली में क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 days में रेंज में स्टक है. नाउ विद इन दैट रेंज ऑल्सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस लास्ट 2 कैंडल्स, इजंट दिस अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, जहां पर ये पूरा बड़े कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है छोटे कैंडल की बॉडी को. यहाँ पर भी थोड़ा सा बेरिशनेस लग रहा है.
और अगर आप देखोगे कि मार्केट ने नया हाई तो रोज लगा रहा है, इसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट नया हाई तो रोज लगा रहा है, बट कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ऐसे देखोगे तो आप यहाँ से भी मार्केट काफी ऊपर गई है, राइट, 23,300, 23,350 से लेकर मार्केट 23,667, 680 तक जा चुकी है। बट अगर आप देखोगे तो कोई ऐसे ग्रीन कैंडल, कन्विंसिंग कैंडल कहीं पर भी नहीं आ रही है। जैसे ये कन्विंसिंग कैंडल थी, ये देखोगे आप, ये कन्विंसिंग कैंडल है, ऐसे कोई कन्विंसिंग कैंडल नहीं बन रही है। नाउ लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे व्हाट वी कैन सी, एक चैनल चल रही थी, ठीक है, एक ये चैनल चल रही थी जो जिसमें काफी बार इसने लोअर बाउंड्रीज को टच किए थे। एंड आई हैव बीन मेंशनिंग इट ऑन माय ट्विटर पोस्ट ऑल्सो कि ये 7 टाइम्स हो चुके हैं, अब 8 टाइम्स हो चुके हैं, ऐसे आई वाज काउंटिंग। तो अगर आप देखोगे ये इतने टच पॉइंट्स के बाद फाइनली इसने कल ब्रेकडाउन दी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी फ्राइडे को, तो उस दिन उसने ब्रेकडाउन तो दी, हालांकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुई क्योंकि ये ब्रेकडाउन दी और वापस इतना बड़ा पुल बैक, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, उसने बहुत बड़ा पुल बैक दिया था। अब तो ऐसा हो गया ना, अगर मतलब आपका डायरेक्शनल बेट भी रॉन्ग राइट है ना, मान लीजिएगा कि आपने ब्रेकडाउन पे कॉल सेल भी किया हो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन सेलर, अगर आपने इस पे कॉल सेल भी किया होगा और आपका ये व्यू भी सही है कि मतलब मार्केट मान लीजिएगा इसके ऊपर नहीं क्लोज होगा, बट स्टिल ये जो इतना बड़ा शार्प अपमूव है ना, ये आपके कॉल को इतना स्पाइक कर देता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दीज डेज बिकॉज ऑफ दिस very sharp movement on one single side after a breakdown and then again a sharp pullback and then again it was more of a fake pullback and then इतना बड़ा कैंडल से वापस तोड़ देता है। तो अगर आप देखो इवन फॉर ऑप्शन बायर्स इफ यू सी, देखिए ये अगर ये ऐसे पोल एंड फ्लैग करके ऐसे ब्रेक किया, आप ब्रेकडाउन पे जैसे ही आप एंट्री लेते हो पुट्स का, जैसे ही आप एंट्री लेते हो पुट का, वो पूरा डिके हो जाएगा बिकॉज इतना शार्प अप मूव आ गया। अब मान लीजिए आपका भी एसएल होगा, आपका एसएल यहाँ पर पुट का एग्जिट हुआ होगा और फिर द वेरी नेक्स्ट कैंडल में पुट स्पाइक हो जाता है, बट उतने में क्या होता है, आप एसएल लेकर आप ट्रेड से बाहर आ जाते हो और फिर ये कैप्चर करने नहीं मिलता। तो ये जो वॉलेटिलिटी है अब काफी हो रही है, मतलब काफी महीनों से बहुत सारे इंडाइसेस में हो रही थी। पहले इट वाज लिमिटेड ओनली टू फिन निफ्टी, सेंसेक्स, दिस काइंड ऑफ इंडाइसेस व्हिच वर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड indices on expiries. Later on, we started looking यही same kind of a movement in Nifty and Bank Nifty also. So you are not safe anywhere, be it Sensex, be it Fin Nifty, be it Mid Cap Nifty, be it Bank Nifty, be it Nifty. तो ये एक नया चीज है जो and it is more like it's a new norm I would say and it is here to stay. तो हमें अपने मेथड्स को थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। वी कांट सिट एंड कंप्लेन कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, मार्केट वैसा क्यों कर रहा है, बिकॉज द रेजिम हैज चेंज नाउ। वी विल डेफिनेटली डिस्कस ये सारी चीजों पे इन डिटेल। अगर आप लोगों को डिस्कस करना हो तो प्लीज डू कॉमेंट ऑन द सेम। तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू रेजिम एंड हाउ टू, ये स्पाइक्स को क्या करना चाहिए और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड से ज्यादा आई वुड से कि कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। देखिएगा अगर आप अब क्या हो गया है ना, अभी अगर आप पास में भी रहोगे, मान लीजिएगा ये ब्रेकडाउन पे एक तो प्रीमियम्स बहुत कम है, द आईवीज आर वेरी लेस एंड इफ लेट्स से इफ यू आर सेलिंग दिस काइंड ऑफ एन ऑप्शन, the moment it reverses it will straight away come at the money and it will go temporarily in the money also obviously, बट उससे पहले आपका एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर आप होल्ड करोगे तो भी कितनी रिस्की है ये। तो दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम दीज डेज दैट most of the option sellers are facing. I'm sure even option buyers will face the same problem because the moment they are buying the puts it will first decay and then it will give the money. That's how it is working. तो अब अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है और मैंने ये दो टारगेट्स मार्क करके रखे। ये देखिए अभी 15 मिनट की टारगेट है, ये कोई बड़ी वाली टारगेट नहीं है। तो ये 15 मिनट की ये देखिए ये सेकंड टारगेट जो रेक्टेंगल ब्रेकआउट वीकली वाली है, मैंने लिखी थी वो जो वीकली वाली है, वो मैंने तो बोला ना 10 पॉइंट की डिस्टेंस पे है। ये जो टारगेट्स है ये हमारा, और ये अभी आप लोग पूछोगे ये टारगेट कहाँ से आया, तो सिंपल है, ये चैनल का आप लेंथ देखो 200 है, तो 100 पॉइंट्स के यहाँ पर एक टारगेट है और दूसरे 100 पॉइंट्स में एक और टारगेट है, दैट्स इट। तो ये 200 पॉइंट के चैनल थे। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल आप देख रहे हो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रेक्टेंगल को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आई विल शो यू, सी दिस। यहाँ पर पहले 23,400 सॉरी 23,400 वाज एक्टिंग मोर लाइक एन रेजिस्टेंस at one point of time. Thereafter, once it got a clear breakout above that level, फिर 23,400 started acting as a support. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर से पिछले दिन 2 बार उसने 23,400 को डिफेंड कर लिया है। अब ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, ये 420 या 400 का लेवल, उसके बाद हम एक
200 पॉइंट का डाउन साइड देख सकते हैं। वाई 200 पॉइंट? बिकॉज ये जो रेक्टेंगल है ये भी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की रेंज है। हम मेजर करके देख लेते हैं, तो आप अगर देखोगे तो 230-250 के रेंज के आसपास है। तो हम फिर वहां पर से हम 200 से 250 मतलब 23,200 के आसपास या 23,150 जो कि हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ का एक टारगेट बन रहा है, मतलब एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर भी होने के चांसेस है। So this is for Nifty and Nifty if you see this looks, the price action looks, because नीचे वाला इतना टेस्टेड है और ये पर्टिकुलर चैनल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम अ बिट डाउन, स्पेशली इन केस ऑफ निफ्टी। निफ्टी में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। और दूसरा एक और चीज मैं बताती हूँ, उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू गो हियर एंड सेशन ब्रेक्स आप क्लिक करोगे ना तो आपको डे वाइज सेपरेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर से मतलब मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारना शुरू कर दिया। अब ये 13 जून से देखना आप, 13 जून मार्केट ओपन्स विद अ गैप अप, सेल ऑफ हो जाती है, फिर रिकवरी होती है, फिर साइडवेज में क्लोज, मेगा गैप अप अगेन, सेल ऑफ, गैप अप अगेन, सेल ऑफ, साइडवेज, गैप अप अगेन, सेल ऑफ, देन रिकवर्स एंड देन कम्स डाउन। ये तो बहुत वोलेटाइल था। ये इस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी दौड़ गया था 1800 पॉइंट। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर अगेन गैप अप, सेल ऑफ, रिकवरी, वोलेटाइल, गैप अप, सेल ऑफ, वोलेटिलिटी। एवरीडे अगर आप देखोगे गैप अप से खुलता है, गैप अप सस्टेन नहीं कर पाती है, गैप अप सेल ऑफ में कन्वर्ट हो रही है। एवरी सिंगल डे गैप अप सेल ऑफ में कन्वर्ट हो रही है, बट वो सेल ऑफ जो है वो उसकी फॉलो थ्रू मोमेंटम हमको नहीं मिल पा रही है फॉर सम रीजन। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ फॉलो थ्रू। तो मार्केट ऐसे कितना दिन करेगा? रोज रोज कर रहा है, कितने दिनों से? तो काफी दिनों से कर रहा है, राइट? आई शोड यू, दिस वाज द चार्ट ऑफ 13th जून। 1 2 3 4 5 6 डेज से ये कर रहा है। तो कहाँ ना कहाँ इसकी वजह से भी हमको लग रहा है कि मार्केट मोस्ट लाइकली थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है। अब मंडे के लिए क्या करेंगे हम? डाउ पे अगर नजर रखेंगे तो डाउ ने एक्चुअली फ्राइडे के लिए कुछ भी नहीं किया, एज फ्लैट एज पॉसिबल। मान लीजिएगा अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं ऑन अ मंडे, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, यहाँ पर जैसे ही ये 400 को ब्रेक करता है तब हम इसको एक मोमेंटम ट्रेड के लिए, एक 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम ऑन द डाउन साइड के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ये 23,400 ब्रेक करता है तब मान लीजिएगा अगर ये गैप डाउन से खुलता है, गैप डाउन से खुलता है, एक पुल बैक आके जैसे ही नीचे जाता है, तो आप ये पुल बैक के बाद के उसको शॉर्ट कर सकते हो। तो ये दो सिनेरियोस हुए हैं और मैं मोस्ट लाइकली मैं डाउन साइड की इसके लिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रही है जो कि 23,583, 23,600। तो 23,600 के ऊपर अगर टिकने लगी तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, उसके पहले हम सोचेंगे भी नहीं बाइंग के लिए अभी के लिए। वाई? बिकॉज द स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत बार टेस्टेड है और अभी इसने फाइनली इसको ब्रेक किया है। तो कहा ना कहा और 400 को ब्रेक करता है तो स्ट्रक्चर में चेंज होता है 15 मिनट में। 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है हायर हाई हायर लो से, फिर एक पर्टिकुलर लोअर लो मिल सकती है हमको और लोअर हाई भी मिल सकती है। तो इसके लिए हम नीचे की बात कर रहे हैं और इसके लिए हम 600 के ऊपर ही हम सोचेंगे कि बाइंग करने के लिए, उससे पहले हम बाइंग का कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो ये रहा एनालिसिस फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम हमने देखा था, देयर वाज दिस रेक्टेंगल व्हिच हैड बीन फॉर्म्ड, यहाँ पर दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल हम टॉप, उसका वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट। तो उसके बेसिस पे मैंने ये टारगेट निकाल के रखे हैं व्हिच इज 53,122। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी ये हायर हाई हायर लो की स्ट्रक्चर में है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है अगेन इन बैंक में। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप तो ये देखिएगा ये फाइनल टारगेट ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकआउट, ये जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको दिख रही है ये वाली, तो ये इसका टारगेट है ऑलमोस्ट 51,970 या 52 पकड़ लीजिएगा, बट ये इसने ऑलमोस्ट वो लेवल को टच किया हुआ है। तो ये तो हो ही गई हमारी फाइनल टारगेट जो थी। अब देखोगे आप तो ये वही सिमिलर ये इलेक्शन वाली वॉलेटिलिटी है, उसको रिकवर कर गई। तो उसके ऊपर ये जो क्लोजिंग है ये बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मिली है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द लेवल पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द कैंडल पर्सपेक्टिव, बिकॉज इट्स अ क्लियर ग्रीन मारूबोजू काइंड ऑफ अ कैंडल। तो अभी हमको क्या हो रहा है वीकली, अगर आप निफ्टी को देखते हो तो वहां पर रेड कैंडल है और थोड़ा सा अपमूव का जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा सा एग्जॉशन दिखने मिल रहा है इन केस ऑफ निफ्टी। अगर इन केस ऑफ बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा है इसका अपमूव तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब हम देखेंगे स्पेशली ये कैंडल बहुत अच्छी क्लोजिंग है, तो यहाँ पर टेक्निकली अगर वीकली के हिसाब से बताएंगे तो फिर ये जब तक ये 50,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक एज सच इसमें कोई ऐसे बड़े शॉट्स के लिए प्लान नहीं कर सकते। साइडवेज के लिए डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। मान लीजिएगा निफ्टी की वजह से ये थोड़ी नीचे आती है बट इट डजंट ब्रेक दिस 49,900 और 50 के का लो, तब तक आप साइडवेज इसमें जरूर प्ले कर सकते हो। हालांकि प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी काफी रेंज काफी बड़ी है क्योंकि ये बिल्कुल 2 दिन में 2000 पॉइंट्स तक का इसने मोमेंटम दिया था। 50,000 से स्ट्रेट अवे इसमें 1000 तक चला गया। नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। द डेली टाइम फ्रेम व्हाट आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व इज दैट आफ्टर दिस मेगा अप मूव there was an inside bar and third day is also an inside bar. It's a simple reason.
Why? Because the range of the candle on the previous day was so huge that it will try to consolidate for few more days before giving a clear momentum. तो यू वुड हैव ऑब्जर्व द सेम थिंग, ये इतने बड़े कैंडल के रेंज के बाद बहुत सारे इनसाइड बार्स हुए यहाँ पर भी बिफोर गिविंग अ क्लियर अप मूव। यहाँ पर भी यही चीजें हैं, तो सो फॉर नथिंग रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर भी द लॉन्ग टेल ऑन द लोअर साइड क्लियरली इंडिकेट्स बायर्स प्रेजेंस नीचे के लेवल से। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पर पहले तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 52,000, उसके बाद तो हमारे पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी एक रेक्टेंगल बना चुका है एंड इट इज मूविंग विद इन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल ऑफ 650 पॉइंट रेक्टेंगल है, वेर इन द लोअर एरिया इज समवेयर अराउंड 51 to 50 के आसपास, और ऊपर का जो रेंज है वो रफली 51, 880 या 870 के आसपास का। तो ये रफली 650 पॉइंट का एक रेक्टेंगल बना हुआ। जब तक मार्केट यही रेंज में घूमता है हमें कुछ नहीं करना है, रादर 51,000 तक हमको कुछ भी नहीं करना। मान लीजिएगा ये जैसे ही ये 51,000 के लेवल को ब्रेक करता है तब हम एटलीस्ट एक ये लेवल तक का एक इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी सी अभी अपर हैंड है बिकॉज बैंक निफ्टी में बायर्स नए आए हैं, सो बैंक निफ्टी में अभी भी क्लियरली बाय ऑन डिप्स ही है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब निफ्टी में सेल ऑन राइस है, बट निफ्टी में जो बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं अभी एट दिस जंक्चर। बट बैंक निफ्टी में अगर ये 50,000 के आसपास आएगा, यहाँ पर आएगा 5500 के आसपास आएगा, 5200 या 50,000 के आसपास आएगा, तभी भी इसमें बाइंग वाला ही मोमेंटम बना रहेगा। अगर आपको ये टारगेट्स जो है इसको अगर कैप्चर करना है तभी आप शॉर्ट्स भी इनिशिएट कर सकते हो। बट रिमेंबर 51 के नीचे कोई शॉर्ट्स इनिशिएट नहीं करने में ही थोड़ी सी समझदारी दिख रही है एज ऑफ नाउ इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा अभी भी बाय ऑन डिप्स ही है। याद रखिएगा ये जहां पर हमने शार्प अप मूव देखा था दैट वाज फ्रॉम दिस जोन। ठीक है, ये जो है ना 5200 अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल में फंसी हुई थी, अगर आप लोग को याद है 600 पॉइंट की, तो ये ब्रेकआउट हमको हुई है 5200। तो 5200 जब भी आएगा 5200 250 यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर रिवर्सल्स अगर आपको मिलेंगे लॉन्ग के लिए तो प्लीज डोंट मिस दैट आउट। 15 मिनट में इट इज वेरी क्लियर, दिस इज आवर फर्स्ट सपोर्ट। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि 5200 से 250 ये वाला जो S2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस पे जरा ध्यान रखना। और बाकी के तो सारे सपोर्ट्स मैंने शेयर किया ही हुआ है एंड एवरी सिंगल डे आई पोस्ट चार्ट्स ऑन ट्विटर, सो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट इफ यू वांट दोज लेवल्स अगेन। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि कहा कि मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मान लीजिएगा ये फ्लैट ओपन होता है और मार्केट कंसोलिडेट होके ब्रेक करने की ऊपर कोशिश करते, लेट इट कंप्लीटली ब्रेक दिस 51,800 और 970 का जोन और ब्रेकआउट देने दीजिएगा, उसके बाद ही आप लॉन्ग जाइएगा। बिकॉज क्या होगा ना, ये विद इन दिस रेंज अगेन मार्केट बहुत वोलेटाइल होगा, ये नीचे आएगा शार्प अप मूव ऐसा सब होता रहेगा। तो यहाँ पर मतलब आपको अगर डायरेक्शनल प्ले करना है तो वो रेंज के बाहर निकलने दीजिएगा उसको रेक्टेंगल से, तभी आप उसको प्ले कर पाओगे। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा जब तक 51,000 इज हेल्ड ऑन टू, आई एम नॉट सीइंग एनी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड। जैसे ही 51 भी ब्रेक हो जाता है तो ये 5500, 5200, 250 इज वन ऑफ द अमेजिंग सपोर्ट्स। यहाँ पर अगर रिवर्सल कुछ आता है तो हम देखेंगे उसके लिए। तो ये रही हमारी एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब चलते हैं इवेंट्स की और तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अपकमिंग इवेंट में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस FOMC मिनट्स, और वो भी है 3 जुलाई को। तो ऐसे तो कोई बहुत बड़ी इवेंट है नहीं फॉर द अपकमिंग वीक। अभी जो मेजर इवेंट है वो न्यू गवर्नमेंट की, जो नया इलेक्शन के बाद की जो न्यू गवर्नमेंट हालांकि रूलिंग पार्टी ही कंटिन्यू कर रही है, उनकी बजट आने वाली है विच विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई। डेट्स आर येट नॉट फाइनलाइज। उसमें वोलेटिलिटी और इंडिया विक्स तभी बढ़ सकती है और उसके पहले नहीं। वन इंपॉर्टेंट अपडेट, ये मैं थोड़ा सा सेक्टर के हिसाब से मैं बनाना चाह रही हूँ एंड आई एम डूइंग दिस अ न्यू इनिशिएटिव। अगर आप लोगों को पसंद आया हो ये पर्टिकुलर थिंग तो वी विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग वीक्स एज वेल। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सेक्टर। तो मैं आप लोगों को बोलने वाली कि कौन सा एक प्रॉमिसिंग सेक्टर लग रहा है अभी, ठीक है। तो आई विल फर्स्ट गो टू दिस वन, CNXIT। तो ये है वो CNXIT सेक्टर। मैंने ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जब हुआ था तब मैंने बताया था कीप एन आई ऑन दिस पर्टिकुलर निफ्टी IT। तो अगर आप निफ्टी IT सेक्टर में लॉन्ग जाना चाहते हो तो दिस इज मतलब ये डिप्स पे अब आप लॉन्ग जा सकते हो। इसमें कोई भी डिप आएगा तब आप लॉन्ग जा सकते हो। क्यों? बिकॉज इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आफ्टर अ कंसोलिडेशन। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये कहा ना कहा एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ अ पैटर्न बन रही है इसमें। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी अच्छी ब्रेकआउट है, बिकॉज क्या हुआ है ये मतलब इट्स मोर ऑफ अ ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ अ सिनेरियो दिख रही है। बट यहाँ पर ये सेक्टर ओवरऑल प्रॉमिसिंग लग रही है। आई वोंट सी दिस इज फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स।
दिस वुड बी एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स। तो उसके लिए अगर आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी में अगर आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट बन रहा है तो आप देख सकते हो। तो देर आर टू वेज हाउ यू कैन लुक इनटू दिस। दिस इज द सेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। यू कैन बेसिकली गो एंड स्काउट योर IT favorites within this particular sector. It could be Wipro, it could be Mindtree, it could be TCS, it could be Infi. So anything of your choice, just make a watch list of those names। और आपको अगर buy on dips के लिए आप रुके हो तो जब भी डिप मिला उसमें आप लॉन्ग जा सकते हो, बिकॉज वी हैव गॉट अ क्लियर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन। तो ये फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव है फॉर पीपल हु वांट टू डू दैट। द अदर ऑल्टरनेटिव, अगर आप लोगों को ये सब करना में बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं कौन सा चूज करूं, कौन से स्टॉक्स एंड ऑल, द अदर ऑल्टरनेटिव कुड बी आई वुड हैव डन लाइक आई वुड हैव सिंपली इन्वेस्टेड इन IT थीम्ड म्यूचुअल फंड्स। थोड़ा टैक्टिकल, आई एम नॉट सेइंग पुट ऑल द मनी, लाइक लेट्स से अगर मेरे पास 100 रुपीज होता तो मैं अभी सोचूंगी कि ठीक है मेरे को थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करने का है। अब मेरे पास अगर IT 0 है परसेंटेज होल्डिंग्स में, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल सिंपली आई वुड कीप इन माय माइंड कि मेरे को एटलीस्ट 20% एक्सपोजर इसमें रखनी है। तो what I will do, I will slowly start to buy IT mutual funds। तो IT specific theme के mutual funds है वो on each dip। Now remember, ये आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हो तो अब ये ब्रेकआउट हमने इसके लिए लिया है बिकॉज हमको यहाँ पर एटलीस्ट समझा कि ये जो लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है उसने उसको ब्रेक कर दिया है। फाइनली ये कह रहा है कि नाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म इन द अपकमिंग मंथ्स। तो उस हिसाब से वी आर प्लानिंग यहाँ पर। तो राइट नाउ मार्केट इज एट 35,200 के आसपास, एग्जैक्टली जहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ था उसी के आसपास है। तो जब भी कोई भी डिप्स आए या इस लेवल पे भी थोड़ा एंट्री लेना है तो आप वो कर सकते हो। रिमेंबर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो जो भी आपको ये सब करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज। आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठ के डिस्कस करनी होगी और आपके रिस्क प्रोफाइल को देखकर वॉट एवर योर फाइनेंशियल एडवाइजर विल सजेस्ट, यू कैन डू द सेम। तो रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो एंड बाय, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आर द प्रॉमिसिंग सेक्टर फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। बिकॉज क्या होता है, हमारा अदरवाइज पूरा जो चैनल है इट इज मोर focused on the trading perspective. From an investing perspective, I just wanted to share that this sector looks like a bit more promising for the upcoming years. Another sector that I'm covering is mid cap nifty, because a lot of people have been asking me to do the same, maybe because they have a lot of exposure to mid cap stocks, so I'm assuming that could be one of the reason. तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर नेकलाइन से हमने ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से भी सिंगल साइड अप मूव गया है। यहाँ पर भी डोजी है जस्ट लाइक निफ्टी का है। यहाँ पर ये जब लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम थोड़ा सा एक कार पर पुल बैक देख सकते हैं इन केस ऑफ मिड कैप। दैट्स अबाउट इट, बट अदरवाइज इट्स स्टिल, मतलब यहाँ पर भी ऐसा कोई हुआ नहीं है कि टॉप आउट हुआ है वगैरह अभी तक तो एटलीस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बन सकता है कि बाय ऑन डिप्स माइट वर्क। यहाँ पर भी मैं अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये शायद से बजट के पहले कोई डिप आ सकती है मार्केट में, तो शायद वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई आपका भी व्यू है और आप लोगों को वैसे रिवर्सल पैटर्न्स मिल रहे हैं तभी यू गो एंड बेट। एंड ऑल्सो रिमेंबर, डोंट बेट योर एंटायर कैपिटल। आप लोगों को आपका रिस्क पहले से ही पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा या इन्वेस्टिंग जो भी आप करते हो। और प्लीज सीक जिसका भी हेल्प आप ले सकते हो आप उनका हेल्प ले लीजिएगा। एंड इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो देन you should always consult with your financial advisor before investing or before doing anything. That's about it for this particular video. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, please do hit the like button and do suggest us some important topics. तो हम उस पे और बताइएगा ये section whether it is helpful or not. I did something new. If you guys like this particular thing, then I will continue to do so in the upcoming videos as well. Thank you very much for your time. I'm Nikita Pujari and I'm wishing you a very great week ahead. Bye bye.